Good morning, students. Today you are going to learn about chemical coordination and integration. So, all cells of our body and the cellular function they need to be continuously regulated. A special kind of coordination and the integration has to be provided, and this function is carried out by the hormones. हमारी बॉडी में जो भी सेलुलर फंक्शन है, ठीक है, दे हैव टू बी कोऑर्डिनेटेड, दे हैव टू बी रेगुलेटेड, एंड दिस function is performed by the hormones, and the hormones are the part of the endocrine system. Okay, so this endocrine system and there is one another system which is called the neural system. They jointly coordinate and regulate the physiological function of the body. So today we will learn about the endocrine system, how the secretion of the endocrine system helping in the coordinating of the of our बॉडी फंक्शन, ठीक है, और जो भी सेलुलर फंक्शंस होते हैं वो कैसे परफॉर्म करता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, टू नो अबाउट द एंडोक्राइन सिस्टम वी नो अबाउट द ग्लैंड्स, because endocrine is nothing but a gland. So glands are of two types. We know about that, exocrine and the endocrine system. Exocrine are the glands which secrete their secretion through the duct. Okay, and their secretion is called the enzyme, oil, wax, etc. You know about these all things. So let me take an example for the exocrine gland, like a gastric gland, okay, which is present inside the stomach. So like, let me erase this. So like these are the glands which is present in the walls of the stomach. अगर हम इसको डिटेल में देखें, सो इस तरह से एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, एंड देयर आर द सेल्स which secrete the secretion. We know that from the gastric gland, HCl is secreted, some kind of enzymes they are secreted, and mucus is secreted. Okay, so their secretion is secreted by these cells. Okay, उनकी secretion जो है, let me draw with the another color. So there is the secretion and it goes to this pathway to the outside, or we can say that inside the stomach. ठीक है, यहाँ पे release हो जाएगा. ओके, तो यहाँ से अगर बॉडी में जा रहा है तो ये ट्यूब जो है, ठीक है, दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इट एक्चुअली हेल्पिंग इट टू गो इनसाइड द स्टमक. ठीक है, लेट मी ड्रॉ इट अगेन क्योंकि मैंने थोड़ा सा गलत बना दिया था. सो इस तरह से, ठीक है, और ये सिक्रीशन जो है इनसाइड द स्टमक जो है वो एंटर करेगी. सो हाउ दिस इज़ परफॉर्म्ड, ये इस तरह से ये सिक्रीशन यहाँ पे आ गई, और ये सिक्रीशन जो है दे आर सिक्रेटेड बाय दीज सेल्स एंड इट गोज टू दिस थ्रू दिस ट्यूब एंड inside the stomach. Okay, so exocrine glands they have this tube like structure which is called duct. What it is called? Duct. On the basis of this duct system, glands are divided into two parts. They are exocrine and the endocrine. Okay, endocrine glands की अगर हम बात करें, so they are the ductless glands because they lack duct. ठीक है, they lack duct. इनके पास डक्ट नहीं होती है, तो इनकी सिक्रेशन कैसे जाती है? लेट मी टेक एन एग्जाम्पल फॉर दैट ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ ग्लैंड विच इज कॉल्ड थायरॉइड. ओके, थायरॉइड ग्लैंड है, एंड हाउ द सेल्स ऑफ दिस थायरॉइड ग्लैंड ये भी कुछ सिक्रेशन सिक्रेट कर रहे हैं, तो इनकी सिक्रेशन जो है वो कैसे जा रही है? सो ब्लड वेसल्स which provide or which help in the transportation of the oxygen and various nutrients. ठीक है, तो nutrients जो है ये ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन करते टाइम ये यहाँ पर भी एंटर करेगी एंड डिवाइडेड इनटू सम कैपिलरीज में डिवाइड कर रही है. ठीक है, तो अब ये जो सिक्रेशन सिक्रेट करेंगी, ये जो सिक्रेशन सिक्रेट कर रहे हैं, दे डू नॉट हैव दिस डक्ट सिस्टम. ओके, जैसे कि अभी हमने बताया था कि ऐसे सेल होगा सिक्रेट कर रहे हैं एंड देन दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज देयर, और फिर वो अपने ऑर्गन जो भी टारगेट ऑर्गन था जैसे कि स्टमक था वहाँ पे चला गया. ठीक है, बट यहाँ पे आप देख रहे हो कि सिक्रेशन जो है वो कहाँ जाएगी? वो डायरेक्ट इट गोज इनटू द ब्लड. कैसे? जब ब्लड एंटर हुआ, ठीक है, इन दिस सिस्टम, ठीक है, यहाँ पे ब्लड ने क्या किया, कुछ ऑक्सीजन जो है वो कैरी की हुई थी, या कुछ न्यूट्रिएंट्स जो है वो कैरी किए हुए थे इस ब्लड ने. सो ब्लड क्या करेगा? ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स ट्रांसफ़र करेगा टू दिस सेल्स. लेट मी ड्रॉ अगेन. यहाँ पे आ गई ब्लड वेसल, आ गई ब्लड वेसल ने जो है
अपना सिस्टम जो है सेंड कर दिया, ठीक है, कैपिलरीज में डिवाइड होगी और ऑक्सीजन ये जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो सेंड कर दिए थ्रू अ फ्लूइड विच इज़ कॉल्ड इंटरस्टिशियल फ्लूइड। यहाँ पे जो है इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेजेंट है, क्योंकि कभी भी सेल का कंटेंट जो है वो खाली नहीं होता है, स्पेसिस जो है में फ्लूइड प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो गया और इन सेल्स के पास पहुँच गया, ठीक है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स। बदले में ये क्या करेंगे, अपना वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो दे देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, ठीक है, विच एक्ट एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, तो वो सेंड कर देंगे। एंड विद दीज वेस्ट प्रोडक्ट अपनी सिक्रेशन भी डाल देंगे इनटू द ब्लड, ठीक है, ब्लड में डाल दे रहे हैं अपनी सिक्रेशन। एंड ब्लड जो है वो सिक्रीशन लेके जा रहा है और जहाँ पर भी इसकी टारगेट ऑर्गन होगी वहाँ पे पहुँचा दे रहा है, ठीक है। तो जहाँ पे टारगेट ऑर्गन होगी वहाँ पे पहुँचा देगा, इसका ये काम है। ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन का ही काम है मेनली, कि यहाँ से चीज़ लेकर दूसरी जगह जाना है, दूसरी जगह से चीज़ लेके कहीं और जाना है, ठीक है। तो इन्होंने अपनी सिक्रीशन सिक्रीट कर दी एंड दैट सिक्रीशन इज कॉल्ड हार्मोन, ठीक है। क्या बोलते हैं उस सिक्रीशन को? हार्मोन। जो भी ऐसे ग्लैंड जिनके पास कोई भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है, डक्ट प्रेजेंट नहीं है, दे आर कॉल्ड हार्मोन्स। अगर और स्ट्रक्चर की बात करूँ मैं, जैसे एक्सोक्राइन ग्लैंड जो हैं इनकी सिक्रेशन को एंजाइम्स बोलते हैं, या एंडोक्राइन ग्लैंड्स की सिक्रेशन को क्या बोलते हैं? हॉर्मोन्स बोलते हैं, ठीक है। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द एक्सोक्राइन एज वेल एज द एंडोक्राइन ग्लैंड। अब बात करते हैं हॉर्मोन्स की, कि हॉर्मोन्स क्या हैं जिनकी हम बार बार बात करें कि ब्लड में इनकी सिक्रेशन जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड से हमारे पास इनकी जो सिक्रेशन थी ना वो डायरेक्ट टारगेट ऑर्गन के साथ ही थी। गैस्ट्रिक ग्लैंड देख रहे हो ना, स्टमक की वॉल के साथ ही प्रेजेंट है और स्टमक में जा रही सिक्रेशन। बट एंडोक्राइन की सिक्रेशन का काम ऐसा नहीं है, टारगेट ऑर्गन कहीं और है, ठीक है। मान लो कि टारगेट ऑर्गन किडनी है और सिक्रेशन हो रही है कहीं और, ठीक है। तो सिक्रेशन जो है वो अपनी टारगेट ऑर्गन के साथ प्रेजेंट नहीं होती है। द टारगेट ऑर्गन इज डिस्टेंटली लोकेटेड फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। एंड दीज आर द नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स विच एक्ट एज अ इंटरसेलुलर मैसेंजर्स एंड आर प्रोड्यूस्ड इन द ट्रेस अमाउंट, बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। अगर इनवर्टिब्रेट्स की बात करें, दे हैव वेरी सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम, कुछ ही हॉर्मोन्स प्रेजेंट है जिसकी वजह से ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है और हम इजीली रिकोगनाइज कर पाते हैं। वेयर एज इन केस ऑफ हायर एनिमल्स और ह्यूमन की ही बात की जाए तो लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स आर देयर, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ हॉर्मोन्स आर देयर एंड दे प्रोवाइड द कोऑर्डिनेशन इन द वर्टिब्रेट्स। मेजर ग्लैंड्स की बात करें तो मेजर ग्लैंड्स ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम कौन कौन सी रहती है? पिट्यूटरी ग्लैंड इज देयर, थायराइड ग्लैंड इज देयर, हाइपोथैलेमस इज देयर, ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड, एंड देयर इज ऑल्सो पेनक्रियाज ग्लैंड विच इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है, एंड पीनल ग्लैंड इज इम्पॉर्टेंट, गोनैड्स, ओवरीज एंड टेस्टिस, ठीक है, मेल्स में टेस्टिस एंड ओवरीज इन द फीमेल्स, दे आर द एंडोक्राइन सिस्टम इन अवर बॉडी और द एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन अवर बॉडी, ठीक है। इन सब के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ हाइपोथैलेमस? हाइपोथैलेमस के बारे में जानते हैं, ठीक है। ये हाइपोथैलेमस जो है कहाँ प्रेजेंट होती है? इट इज़ द बेसल पार्ट ऑफ द डायनसेफेलॉन एंड द फोरब्रेन, basal part of the diencephalon and the forebrain, and it regulates a wide spectrum of the body function, ठीक है। it contains several group of neurosecretory cell, very very important। इसके पास क्या होता है? neurosecretory cells, दे आर कॉल्ड न्यूक्लियाई विच प्रोड्यूस हॉर्मोन्स। ये जो सेल्स हैं ना वो हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं और ये जो हॉर्मोन्स हैं, ठीक है, जो भी हाइपोथैलेमस सिक्रीट करेगा, दे रेगुलेट द सिंथेसिस एंड द सिक्रीशन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना वो इस हाइपोथैलेमस के कब्जे में है। हाइपोथैलेमस जैसा बोलेगी वैसा उसको करना पड़ेगा, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस जो है वो भी दो टाइप के हॉर्मोन्स जो है वो रिलीज़ करती है, दैट इज़ RH और IH, ठीक है। RH और IH कौन सिक्रीट करता है? हाइपोथैलेमस के हॉर्मोन्स सिक्रीट करते हैं। RH क्या है? रिलीजिंग हार्मोन। IH क्या है? इनहिबिटिंग हार्मोन। रिलीजिंग मतलब स्टिमुलेट, ठीक है, ऐसे हार्मोन जो स्टिमुलेट करते हैं ये हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, क्योंकि ये इसके कब्जे में है, तो रिलीजिंग हार्मोन्स क्या करेंगे? वो स्टिमुलेट करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड को कि आप जो है आगे अपनी सिक्रीशन करें,
ठीक है। और इनहिबिटरी हार्मोन्स क्या होंगे, वो इनहिबिट करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड को टू नॉट सिक्रीट द हार्मोन्स, ठीक है। सो रिलीजिंग हार्मोन्स विच स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ द पिट्यूटरी हार्मोन्स एंड द इनहिबिटिंग हार्मोन्स वो क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलेंगे कि अपनी सिक्रीशन को बंद कर दो, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि देयर इज़ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हार्मोन इज़ देयर, जो भी पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट कर रही है हार्मोन, ठीक है, वो मान लो कि सफिशिएंट अमाउंट पहुंच गया है, तो अब हाइपोथैलेमस ऑर्डर देगा पिट्यूटरी ग्लैंड को विद द हेल्प ऑफ दिस इनहिबिटरी हार्मोन कि आप अपनी सिक्रीशन बंद कर दो, जो भी हार्मोन है वो सफिशिएंट अमाउंट में है, या अदर फैक्टर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। अब अगर एग्जांपल दूँ मैं कोई रिलीजिंग हार्मोन का, सो देयर इज़ GnRH, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी को, ठीक है। बोलेगा, ऑर्डर करेगा दैट रिलीज द गोनेडोट्रोफिन हार्मोन। गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन क्या बोलेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को कि गोनेडोट्रोफिन को रिलीज करो, सिंथेसाइज करो और रिलीज करो, ठीक है। अगर मैं बात करूँ IH के एग्जाम्पल की, सो देयर इज सोमैटोस्टेटिन हार्मोन। सोमैटोस्टेटिन हार्मोन ये क्या करेगा, ये भी हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा, बट ये इनहिबिट करेगा, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड में जाएगा, इसको इनहिबिट करेगा, और किसको बोलेगा इनहिबिट करने के लिए, किस हार्मोन को, ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड बोलेगा कि इस ग्रोथ हार्मोन की रिलीज को बंद कर दो, ठीक है। कौन करेगा, सोमैटोस्टेटिन ये बोलेगा कि ग्रोथ हार्मोन की रिलीज को बंद कर दो, ठीक है, ये इनहिबिशन का काम करेगा। नेक्स्ट चलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड पे। सो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इट इज़ लोकेटेड इन द कैविटी ऑफ द सेला टर्सिका, वेरी इंपॉर्टेंट, बोनी कैविटी होती है, अटैच्ड होती है हाइपोथैलेमस से, ठीक है। और जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होती है, एक तो होती है एडिनो हाइपोफाइसिस, ठीक है, एडिनो हाइपोफाइसिस, ओके, एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस, and the neurohypophysis। एडिनो और न्यूरो, जो एडिनोफाइसिस है ना, इट हैज़ टू पोर्शन। कौन कौन से टू पोर्शन है, पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया, ठीक है। जो एडिनोहाइपोफिसिस है उसके दो पार्ट हैं, कौन से, पार्स डिस्टेलिस एंड पार्स इंटरमीडिया, ठीक है। अब जो पार्स डिस्टेलिस है वो कुछ तरह के हॉर्मोन्स को रिलीज करती हैं, इनके फंक्शंस के बारे में हमें पढ़ना है, दैट इज ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, TSH, ACTH, LH, FSH, प्रोड्यूस बाय द पार्स डिस्टेलिस, किसका पार्ट है, एडिनोफाइसिस का पार्ट है। MSH इट इज रिलीज बाय द पार्स इंटरमीडिया, किसका पार्ट है, एडिनोहाइपोफाइसिस का पार्ट है, ठीक है। अब दूसरे पार्ट की बात करते हैं विच इज़ द पोस्टीरियर पार्ट और द न्यूरोहाइपोफाइसिस, ठीक है, जिसको हमने क्या बोला है, न्यूरोहाइपोफाइसिस। इनके जो भी अदर नेम है वो आपको याद रखने हैं कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी को क्या बोलते हैं, एंटीरियर को एडिनो बोलते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस, पोस्टीरियर को न्यूरोहाइपोफाइसिस बोलते हैं, एंड समटाइम इट इज़ ऑल्सो नोन एज पार्स नर्वोसा, ठीक है। अब ये कौन से हार्मोन रिलीज करता है, सो दे रिलीजेज टू टाइप्स ऑफ हार्मोन, ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन। आपको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ओवी, ठीक है, ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन। चलिए अब एक एक करके पढ़ते हैं दैट व्हाट आर द फंक्शन ऑफ दिस हार्मोन। सो उसको पढ़ने से पहले देयर इज सम इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट हार्मोन रिलीज फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी आर सिंथेसाइज्ड इन द हाइपोथैलेमस। ये जो भी पोस्टीरियर पार्ट रिलीज करता है, ठीक है, हॉर्मोन्स जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड का पार्ट है, वो हाइपोथैलेमस जो है उसमें सिंथेसाइज होते हैं, वेयर एज द एंटीरियर पिट्यूटरी पार्ट है, ठीक है, दे आर डोरमेंट अनलेस डायरेक्टेड टू बी रिलीज्ड बाय द हाइपोथैलेमस। जब तक कि रिलीजिंग हार्मोन जो है हाइपोथैलेमस से ऑर्डर नहीं आएगा तब तक ये क्या करेंगे, तब तक ये इनएक्टिव है, काम नहीं करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने एक ड्रॉ कर दिया हुआ है, एक फ्लो चार्ट बना दिया है, एडिनो हाइपोफाइसिस एंटीरियर पार्ट, न्यूरो हाइपोफाइसिस पोस्टीरियर पार्ट, रिलीजेस एडिनो हाइपोफाइसिस हैज़ टू पार्ट दैट इज पार्स डिस्टालिस, ठीक है, एंड पार्स इंटरमीडिया।
अब ये पार्स डिस्टालिस और इंटरमीडिया कौन कौन से हार्मोन रिलीज करते हैं? GH ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, TSH, ACTH, FSH, LH। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, ACTH, FSH, LH। यू कैन मेक योर ओन निमोनिक ऑल्सो फॉर दैट। ठीक है, पार्स इंटरमीडिया जो है MSH जो है रिलीज करता है न्यूरोहाइपोफाइसिन, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन। ठीक है, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। सबसे पहले ग्रोथ हार्मोन पढ़ते हैं। ग्रोथ हार्मोन होता क्या है? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ। ठीक है, एंड दे रिलीजेज ड्यूरिंग द चाइल्डहुड। ठीक है, जब जब जो है ग्रोथ हार्मोन जो है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, it stimulate the, we can say that, growth of the child। okay, अगर ज़्यादा सिक्रीशन हो रही है ग्रोथ हार्मोन की, ठीक है, ओवर सिक्रीशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट द एब्नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बॉडी लीडिंग टू द जाइंटिज्म, जाइंट हो जाएगा। ठीक है, एंड लो सिक्रीशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन रिजल्टेड इन द स्टंटेड ग्रोथ रिजल्टिंग इन द पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। एक है जाइंटिज्म, एक है ड्वार्फिज्म। जाइंटिज्म मतलब ज़्यादा ग्रोथ, और वो क्यों है? क्योंकि ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा सिक्रेट हो गया है। ठीक है, अगर कम सिक्रेट हो रहा है, टू लिटल, तो ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म मतलब छोटा, बोना। ओके, एंड टू मच हैव द जाइंटिज्म ऑफन अकम्पेड बाय द एक्रोमीगली। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे। पहले आप ये दो चीज़ें याद रखें कि जाइंटिज्म क्या है, ड्वार्फिज्म क्या है। ज़्यादा सिक्रीशन तो जाइंटिज्म, कम सिक्रीशन है तो ड्वार्फिज्म। सो एक्रोमीगली जो वर्ड हमने पीछे पढ़ा, दैट इज द एक्सेस सिक्रेशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन इन द एडल्ट्स। ठीक है, चाइल्ड जब जो बेबी है दैट इज इन द प्री मैच्योर फेज। ठीक है, उस टाइम जो ग्रोथ हार्मोन है वो रिलीज होता है ताकि ग्रोथ होती रहे बॉडी की। बट कॉम्प्लिकेशंस होने की वजह से, या वी कैन से दैट कि ज़्यादा हार्मोन की रिलीज होने की वजह से, ठीक है, एक्रोमीगली हो जाता है। एक्रोमीगली है क्या? एक्सेस सिक्रेशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन इन द एडल्ट्स इन द मिडल एज कैन रिजल्ट इन द सीवियर डिसफिगरमेंट स्पेशली ऑफ द फेस। ठीक है, डिसफिगरमेंट हो जाएगी जिस कंडीशन को हम एक्रोमीगली बोलते हैं, एंड इट लीड्स टू सीरियस कॉम्प्लिकेशन एंड प्री मेच्योर डेथ अगर अनचेक रहा तो। ठीक है, दिस डिजीज हार्ड टू डायग्नोस इन द अर्ली स्टेजेस। हमें काफ़ी बाद में जाके इसके बारे में पता चलता है। ठीक है, एंड गोज अनडिटेक्टेड फॉर मैनी ईयर्स अंटिल चेंजेस इन द एक्सटर्नल फीचर्स बिकम नोटिसेबल। जब तक ये बाहर हमें विजिबल हो जाएगा तब तक काफ़ी देर हो जाएगी। ठीक है, और अर्लियर जो है डिटेक्ट नहीं हो पाता है, डायग्नोस नहीं हो पाता है। देन गोइंग टूवर्ड द सेकेंड हार्मोन रिलीज बाय द एडिनोफाइसिस एंटीरियर पार्ट। ठीक है, वो रिलीज कर रहा है पिट्यूटरी का प्रोलैक्टिन, रेगुलेट्स द ग्रोथ ऑफ द मेमरी ग्लैंड्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ द मिल्क इन दैम। मेमरी ग्लैंड्स की ग्रोथ में हेल्प करेगा प्रोलैक्टिन हार्मोन, और मिल्क की फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। देन गोइंग टूवर्ड्स द TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, stimulate the synthesis and the secretion of the thyroid hormone from the thyroid gland। ठीक है, ACTH, adrenocorticotrophin hormone, adrenocorticotropic hormone, it stimulates the synthesis of the glucocorticoids from the adrenal cortex। ठीक है, इनका कुछ फंक्शन है वो याद रखना है आपने कि इनका फंक्शन क्या है और ये कहाँ से रिलीज हो रहे हैं। ओके, इनकी ग्लैंड कौन सी है, टारगेट ऑर्गन कौन सी है। नेक्स्ट बात करते हैं गोनेडोट्रोफिन हार्मोन की। जो गोनेडोट्रोफिन है, दे रिलीजेज टू टाइप ऑफ हार्मोन्स, LH एंड FSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, तो दे बोथ स्टिमुलेट द गोनेडल एक्टिविटी, गोनेड से जुड़े हैं। ठीक है, गोनेडोट्रोफिन बोला गया है तो इट मीन्स गोनेड से रिलेटेड है गोनेडोट्रोफिन, एंड दे हैंस द नेम इज रिलेटेड टू दिस। ओके, क्योंकि गोनेडल एक्टिविटी से रिलेटेड है। इन मेल्स LH की बात करें तो LH जो है वो स्टिमुलेट एंड द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ द हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन फ्रॉम द टेस्टिस। ये स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस के या सिक्रीशन के, सिंथेसाइज करेगा फिर सिक्रीट करेगा, और कौन सा हार्मोन सिक्रीट करेगा, टेस्टिस, सॉरी एंड्रोजन फ्रॉम द टेस्टिस। टेस्टिस से एंड्रोजन रिलीज हो रहा है, एंड इन मेल्स FSH एंड द एंड्रोजन दे बोथ रेगुलेट द स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, ये होगी मेल में बात। फीमेल में
In female, LH induces ovulation of the fully mature follicles and maintains the corpus luteum formed from the remnants of the graphene follicle after ovulation. ओवुलेशन के बाद, ठीक है, जो ग्राफिन फॉलिकल है वो कॉर्पस ल्यूटियम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, एंड कॉर्पस ल्यूटियम जो है, ठीक है, इनको मेंटेन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. नेक्स्ट गोइंग टुवर्ड द एमएसएच. एमएसएच कौन रिलीज करता है? अगर आपको याद हो, सो देयर इज पार्स इंटरमीडिया, ठीक है, पार्स इंटरमीडिया था और पार्स डिस्टैलिस था. डिस्टैलिस बहुत सारे हार्मोन रिलीज करता है, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, ACTH, TSH, जो भी अभी हमने सारे के सारे पढ़े. अभी जो ये MSH है, इट इज़ रिलीज बाय दिस पार्स इंटरमीडिया, और दोनों के दोनों एंटीरियर पोर्शन है, एडिनो हाइपोफाइसिस से रिलेटेड है. बार बार मैं आप इसीलिए बोल रही हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए. तो MSH जो है, इट एक्ट्स अपॉन द मेलानोसाइट्स विच हैज़ द मेलानिन. Melanin containing cells are called melanocytes and regulates the pigmentation of the skin. ठीक है, जो भी पिगमेंटेशन है बॉडी में, जो मेलानिन सेल्स हैं उनकी एक्टिविटी को रेगुलेट कौन करता है? मिलेनो स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं ऑक्सीटोसिन पे. ऑक्सीटोसिन जो है, इट एक्ट्स ऑन द स्मूथ मसल्स ऑफ आवर बॉडी. Okay, it acts on the smooth muscles of our body and stimulate their contraction. The hormone also involved in the inducing the labor during the childbirth. ठीक है, चाइल्ड बर्थ के टाइम भी इन फीमेल्स, ठीक है, इट स्टिमुलेट्स अ विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस. चाइल्ड बर्थ के टाइम कॉन्ट्रैक्शन जो प्रोड्यूस करता है, दैट इज एक्चुअली डन बाय दिस हार्मोन. ठीक है, एंड द इजेकुलेशन ऑफ द और इजेक्शन ऑफ द मिल्क फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड इज ऑल्सो स्टिमुलेटेड बाय दिस ऑक्सीटोसिन हार्मोन. ठीक है, वेसोप्रेसिन, ये दोनों जो मैंने अभी बताया, वेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन, यू नो दैट ये न्यूरोहाइपोफाइसिस के दो हार्मोन्स थे. ठीक है, वेसोप्रेसिन हम पहले भी पढ़ चुके हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में, जब किडनी के बारे में पढ़ा था. ठीक है, सो देयर इज वेसोप्रेसिन. तो जो वेसोप्रेसिन है, इट एक्ट्स ऑन द किडनी. ठीक है, एंड स्टिमुलेट द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स बाय द DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. अगर आप लोगों को याद है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, सो वहाँ पे ये स्टिमुलेट करेगा कि रीएब्जॉर्प्शन करो वाटर की और इलेक्ट्रोलाइट्स की. ठीक है, एंड देयर बाय द रिड्यूसेस द लॉस ऑफ वाटर. यूरिन जो है उसको कंसनट्रेटेड बनाया जाता है, और जितना भी वाटर है उस वाटर की क्वांटिटी को रिड्यूस किया जाता है. ठीक है, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज ADH. ये क्वेश्चन भी हमेशा आता है, बार बार पूछा जाता है, व्हाट इज ADH, और अनदर नेम ऑफ द ADH इज द वेसोप्रेसिन. ADH की फुल फॉर्म एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन. ठीक है, एंड इम्पेयरमेंट अफेक्टिंग सिंथेसिस और द रिलीज ऑफ द ADH रिजल्ट इन द डिमिनिश्ड एबिलिटी ऑफ द किडनी टू कंजर्व द वाटर. ठीक है, क्या बोल रही हूँ मैं कि अगर इफेक्ट जो है कहीं पे भी इसके सिंथेसिस में, ADH के सिंथेसिस में या रिलीज में कहीं भी गड़बड़ी हो जाती है, सो इससे क्या होगा? डिमिनिश्ड एबिलिटी हो जाएगी किडनी की टू कंजर्व द वाटर, लीडिंग टू वाटर लॉस एंड डिहाइड्रेशन. दिस कंडीशन इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या बोलते हैं इस कंडीशन को? डायबिटीज इंसिपिडस. ओके, डायबिटीज़ इंसिपिडस, अगर ADH जो है वो प्रॉपरली सिंथेसाइज या रिलीज नहीं हो रहा है तो. ठीक है, सो टुडे आई टॉक अबाउट द हॉर्मोन्स. ठीक है, हॉर्मोन्स क्या होते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, और एंडोक्राइन सिस्टम में मेन इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स कौन सी हैं? पिट्यूटरी, पीनल, थायरॉइड, एड्रिनल, पेनक्रियास. ठीक है, गोनेड्स हैं, थाइमस है. ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं. और हमने सबसे पहले हाइपोथैलेमस के बारे में जाना, जो कि रेगुलेट करती है. ऑल्सो इट इज़ रिलेटेड टू द पिट्यूटरी ग्लैंड. इसके पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शंस तभी होंगे जब हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करेगी. ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को के बारे में हमने फिर आगे पढ़ा कि दो पार्ट होते हैं. एक तो सबसे पहले सेलर टर्सिका से मिलके बनी होती है, फिर दो पार्ट, एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस. एडिनोहाइपोफाइसिस इज द एंटीरियर पार्ट
टू पोर्शन से मिलके बना होता है, पार्स डिस्टेलिस एंड द पार्स इंटरमीडिया। ठीक है, लेट मी टेकन टू देयर। ओके ओके, पार्स डिस्टेलिस। ठीक है, अब anterior and the anterior and the posterior pars distalis pars intermedia various hormones, two hormones only, oxytocin and the vasopressin। ठीक है, इनके बारे में हमने पढ़ा कि कौन सा हार्मोन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, साथ में इन उनके ऑर्गन कौन है, टारगेट ऑर्गन या इनका फंक्शन क्या है। ठीक है, और एडीएच के बारे में जाना कि एडीएच जो है उसको वैसोप्रेसिन बोलते हैं, और अगर किसी भी तरह से इसके सिंथेसिस और रिलीज में कोई भी अफेक्शन होती है, अफेक्ट होता है कोई किसी चीज़ की वजह से, सो इट विल लीड टू द डायबिटीज़ इंसिपिडिस। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द अदर ग्लैंड्स ऑल्सो।